یہ ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں بہت سادگی اور خوشی سے زندگی گزار رہا تھا، مگر ان کی خوشی میں ایک کمی ہمیشہ چبھتی رہتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کسان کی بیوی روز اللہ سے فریاد کرتی، اللہ مجھے بھی ایک بچہ دے دے جو مجھے ماں کہہ کر پکارے تاکہ ہماری زندگی مکمل ہو جائے۔ ایک شام کسان کھیتوں سے تھکا ہارا لوٹا۔ اس نے اپنے ساتھ جلانے کی لکڑیوں کا ایک گٹر لایا تھا جسے اس نے دیوار کے سہارے رکھ دیا۔ پھر کپڑے بدل کر وہ بیوی کے ساتھ بیٹھا اور دونوں نے سکون سے کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج رات میں نے عجیب سا خواب دیکھا، جیسے اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت بچہ دیا ہو۔ کسان نے اس کی آنکھوں میں لمبے عرصے بعد چمک دیکھی اور وہ بھی دل ہی دل میں امید کرنے لگا کہ شاید یہ خواب کبھی سچ ہو جائے۔ لیکن تبھی لکڑیوں کے گٹیڑ کے بیچ سے ایک چھوٹا سا ننھا سانپ سرکتا ہوا باہر آیا۔ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ دونوں اس کی حرکتیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پر بیوی کا دل اچانک بھاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھو سانپوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، مگر ہمارے نصیب میں تو کوئی اولاد ہی نہیں۔ اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہی ننھا سانپ ان کی طرف بڑھا، اور معجزہ تب ہوا جب اس نے انسانی آواز میں کہا، مت رو میری ماں، اگر خدا نے تمہیں اولاد نہیں دی تو مجھے اپنا بیٹا بنا لو۔ میں تمہارا فرمانبردار بیٹا بن کر رہوں گا، کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم بس مجھے ماں کی طرح پالو، میں تمہارے پیار کا بدلہ ضرور دوں گا۔ یہ سن کر دونوں دنگ رہ گئے۔ کیسے ایک چھوٹا سا سانپ انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا۔ سانپ ڈرتے ڈرتے بیوی کے قریب آیا۔ کسان کی بیوی کے دل میں ممتا جاگ اٹھی۔ وہ نرمی سے بولی، اگر تو سچ میں ہمارا بیٹا بننا چاہتا ہے تو ہم تجھے خوشی خوشی اپنا لیں گے۔ ہم تیری ویسے ہی پرورش کریں گے جیسے ماں باپ اپنے بچے کی کرتے ہیں۔ وہ اٹھی، سانپ کو ہاتھوں میں لیا، اسے صاف پانی سے نہلایا، نرم کپڑے سے پونچھا اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا نرم بستر تیار کیا۔ اس رات اس نے سانپ کو پیار سے اپنے پاس سلا دیا۔ دن بیتنے لگے۔ بیوی ہر روز اسے اچھے برتن میں بہترین کھانا پانی دیتی۔ اس کی دیکھ بھال ایسی کرتی جیسے کوئی ماں اپنے لاڈلے بچے کی کرتی ہے۔ محبت، فکر اور دعاؤں کے ساتھ وقت گزرتا گیا۔ سانپ بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن سانپ اپنے باپ کے پاس آیا اور بولا، ابا اب میں جوان ہو گیا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کسان مسکرایا اور بولا، یہ تو بہت اچھا خیال ہے، میں جنگل میں جا کر تم جیسا ایک ساتھی ڈھونڈ لاؤں گا جو تمہاری عمر اور قد کاٹ کی ہو۔ سانپ نے فوراً سر ہلایا، نہیں ابا، میں سانپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تو سلطان کی حسین بیٹی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کسان گھبرا گیا۔ شہزادی سلطان کی بیٹی پر سانپ ڈٹ گیا۔ اس نے کہا، اب دارالحکومت جائیں اور سلطان سے کہیں کہ ایک بڑا سانپ ان کی شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کسان دل سے بھلا اور معصوم تھا۔ اس نے سانپ کا حکم مانا اور دارالحکومت کی راہ پکڑ لی۔ وہ دارالحکومت پہنچا اور سلطان کے محل میں جا کر ملاقات کی اجازت مانگی، کیونکہ معاملہ اس کا اپنا نہیں بلکہ اس کے بیٹے کا تھا۔ جب سلطان سے ملنے کی اجازت ملی اور کسان ان کے سامنے پہنچا تو اس نے ادب سے جھک کر کہا، میرے عظیم سلطان، میرے گھر میں ایک بڑا سانپ رہتا ہے جسے میں نے بچپن سے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح بولتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے، اور اب وہ آپ کی بیٹی شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے کسان کے بھولے پن کو دیکھتے ہوئے زور کی ہنسی لگائی۔ انہوں نے ٹھٹولی بھرے انداز میں کہا، جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ اور اس سانپ سے کہہ دو کہ اگر وہ میرے محل کے باغ کے سارے پھلوں کو سونے میں بدل دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ کسان سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ سلطان ہنستے ہوئے بولے، کیا حماقت ہے، اور پھر اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ گھر پہنچتے ہی کسان نے سانپ کو ساری بات بتائی۔ سانپ نے سکون بھری آواز میں کہا، ابا جان، گھبرائیے مت،
ये मेरा नाम लीजिए और कल सुबह फजर से पहले आपको सुल्तान के बाग में जाना होगा और मेरेम को कुछ देर बाग में रखकर अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लेनी होंगी, फिर इसके बाद जो करिश्मा होगा। किसान ने कहा, बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा। भोर होते ही किसान सुल्तान के बाग की तरफ निकला। बाग पहुंचकर इस नीम को जमीन पर रखा और आंखें बंद कर ले। थोड़ी देर बाद जब किसान ने आंखें खोलीं तो वो हैरान रह गया। पूरे बाग में एक अजीब सी चमक फैलने लगी। उसने देखा कि दरख्त, उनकी टहनियां, पत्ते, फूल और फल सब के सब खनक कर सोने में बदल रहे थे। किसान की सांसें थम गईं। वो हैरानी में कभी दरख्तों को देखता, कभी अपने हाथ में लीम को। फिर वो दौड़ पड़ा सांप को ये मौजिज़ा सुनाने के लिए। इधर सुल्तान जब टहलते हुए अपने बाग की तरफ आए तो उनकी नजर सोने जैसे चमकते दरख्तों पर पड़ी। उन्होंने देखा पूरा बाग असल सोने का बन चुका है। उन्होंने दरख्तों को 2 बार, फिर 3 बार छुआ ताकि यकीन हो जाए कि यह ख्वाब नहीं हकीकत है। वो घबरा गए और खुद से बुड़बुड़ाए, ये किसी गरीब भूले किसान का काम नहीं हो सकता, पक्का कोई राज है। सांप ने किसान से कहा, अब्बा जान सुल्तान से कहिए कि मैंने उनकी शर्त पूरी कर दी, अब वो अपना वदा निभाएं। किसान सुल्तान के पास पहुंचा। सुल्तान इस बार संजीदा थे मगर दिल अभी भी 2 देड़ में था। उन्होंने कहा, ठहरो, इतनी जल्दी नहीं। अगर वो सांप सच में मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे एक शाही महल बनाना होगा जिसकी जमीन सोने की तह से ढकी हो। जब तक ये पूरा ना हो जाए निकाह की बात मत करना। किसान डरा हुआ घर लूटा। इसे डर था कि कहीं सांप इस बार नाराज ना हो जाए, लेकिन मजबूरी थी, उसे सुल्तान का पैगाम देना ही था। उसने कांपती आवाज में सारा पैगाम दोहराया। सांप ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा जान अब बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। किसान ने जैसे ही आंखें बंद की, जमीन थरथराई। हवा में एक नूर सी चमक फैल गई और जब किसान ने आंखें खोली तो उसके सामने एक शानदार महल खड़ा था। दीवारें निगारिश, गुंबद आसमान को छूते हुए और फर्श चमचमाती सोने की तह से ढका हुआ। किसान की सांसें रुक गईं। इसके होंठ कांपने लगे। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये कोई मामूली सांप नहीं। भागता भागता वो सुल्तान के पास पहुंचा और हानपत्ती आवाज में बोला, हुजूर, आपका शाही महल मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये सुनते ही सुल्तान ने वक्त ज़ाय न किया। वो फौरन अपनी हवेली की सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ गया और दूरबीन से नए महल को देखने लगा। जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, उसने इसके दिल को खुशी से भर दिया। अब इसके पास मांगने को कुछ और बचा ही नहीं था। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अजीब सी गुजारिश को मंजूर करता हूं। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे इस सांप से करने को तैयार हूं जिसके बारे में तुमने बताया था, मगर एक मुश्किल अभी भी बाकी है। मेरी बेटी की रजामंदी भी जरूरी है। सुल्तान ने शहजादी को बुलवाया। वो आई तो सुल्तान ने नरमी और दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी प्यारी, मेरी अनमोल बेटी, तुम्हारे वालिद ने जल्दबाजी में एक बहुत बेवकूफी भरा वदा कर दिया है, लेकिन वदा तो वदा होता है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता। मुझे यकीन है कि तुम अपने वालिद का मान रखोगी क्योंकि मैं किसी भी हालत में अपना वदा नहीं तोड़ सकता। शहजादी ने सर झुकाकर कहा, अब्बा जान मैं आपकी अमानत हूं। आपका हुक्म मेरे लिए जान से भी प्यारा है। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वो करूंगी जो आप कहीं। बस फरमाइए मुझे क्या करना है। सुल्तान ने भारी दिल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सांप से शादी करो। शहजादी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, फिर सर झुका दिया। उसने अपने वालिद के फैसले को कबूल कर लिया, बगैर जाने कि वो एक इंसान नहीं बल्कि सचमुच के सांप से शादी करने जा रही है। सुल्तान ने फौरन किसान को हुक्म दिया कि वो सांप को महल में लाए ताकि शहजादी अपने होने वाले शौहर को देख सके। कुछ देर बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। 4 बड़े बड़े हाथियों से खींची जा रही सोने की चमचमाती गाड़ी आ रही थी। इसके अंदर बैठा था वही खौफनाक बड़ा सांप।
लोग उसे देखते ही दहशत में भाग रहे थे और उसके पास किसान बैठा था। जब ये सोने की गाड़ी महल के दरवाजे पर पहुंची तो पहरेदार, नौकर सबके चेहरों पर खौफ की सफेदी फैल गई। कोई पास आने की हिम्मत न जुटा पाया। कुछ ही देर बाद वो सांप शहजादी के कमरे में पहुंचा। उसने दस्तक दी और अंदर जाने की इजाजत मांगी। अंदर दाखिल होते ही उसे एक हैरान कुन मंजर दिखाई दिया। शहजादी बिल्कुल पुरसुकून खड़ी थी, ना खौफ ना घबराहट, बल्कि अदब से झुककर उसे सलाम कर रही थी। सांप उसकी हिम्मत, इसके सुकून और उसके वादे की पाबंदी देखकर दंग रह गया। वो सोच भी ना सकता था कि इतनी खूबसूरत शहजादी उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे देगी। उसने आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो मेरी हुसैन शहजादी? हाँ, मैं तैयार हूं। बस ये कहना था कि अचानक एक तेज चमक कमरे में फैल गई और देखते ही देखते वो बदसूरत खौफनाक सांप गायब हो गया। इसकी जगह खड़ा था एक खूबसूरत जवान जिसके चेहरे पर मर्दानगी, बहादुरी और शाइस्तगी की चमक थी। कमरे के एक कोने में सिर्फ सांप की उतारी हुई खाल पड़ी थी। सुल्तान और सुल्ताना जो खिड़की से झांक रहे थे, ये सब देखकर हैरान रह गए। शहजादी के साथ अब कोई सांप नहीं बल्कि एक बहादुर खूबसूरत जवान खड़ा था। उन्हें इसी लम्हे समझ आ गया कि ये मामूली वाकया नहीं, इसमें एक गहरा राज छुपा है। जब सुल्तान और सुल्ताना ने देखा कि उनकी बेटी बिल्कुल महफूज है तो उनके दिल में राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया और इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुए। शहजादी को सीने से लगाया, उसकी पेशानी चूमी और उसके नए मंगेतर अब इंसानी शक्ल में लूटे शहजादे को बहुत सी दुआएं दे। शहजादे ने अदब से बैठकर उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक चालाक जादूगरनी ने उसे धोखे से सांप में बदल दिया था। हालांकि वो असल में एक बहादुर शहजादा और एक अजीम सुल्तान का बेटा था। कमरा खुशी से भर गया था, मगर यह खुशी ज्यादा देर ना टिकी। सुल्ताना की नजर कमरे के कोने में सांप की उतारी हुई खाल पर पड़ी। उन्होंने इसे उठाया और मजबूत आवाज में कहा, अब तुम कभी सांप नहीं बनोगे। इतना कहकर उन्होंने वो खाल जलती आग में फेंक दी। शहजादे का चेहरा दर्द से मुरझा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अब नहीं जानती कि आपने क्या कर दिया। कितना बड़ा खतरा अपने ऊपर ले लिया। जैसे ही वो खाल जलने लगी, एक भयानक तब्दीली हुई। बेचारा शहजादा अचानक एक उदास सफेद परिंदा बन गया। इसके पर बर्फ जैसे सफेद थे और उसकी आंखों में गहरी मायूसी। वो घबरा कर उड़ने लगा और बंद शीशे वाली खिड़की की तरफ गया। एक तेज टुकर से इसने शीशा तोड़ दिया। इसके पर जख्मी हो गए और वो आसमान की तरफ उड़ता चला गया। सुल्तान और शहजादी सकते में खड़े थे। शहजादी चीखती हुई खिड़की तक पहुंची। वो तब तक इस जख्मी परिंदे को देखती रही जब तक वो फजाओं में गुम ना हो गया। उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाए और आंसुओं से भीगी आवाज में दुआ मांगी, ए खुदा मेरी मदद कर, मेरे शहजादे की हिफाजत कर। इसका दिल टूट चुका था। माँ बाप ने समझाने की कोशिश की, सब्र की बातें की, मगर इसका गम और आंसू थमने का नाम ना ले रहे थे। रात ढल गई। महल में हर कोई अपने कमरे में सो गया सिवाय शहजादी के। उसने चुपके से कपड़े पहने, अपना कमरा छोड़ा और माँ बाप के पास जाकर बोली, मुझे इजाजत दें, मैं अपने शहजादे को ढूंढने निकलना चाहती हूं। वो कहीं भी हो, मैं इसे वापस ला कर रहूंगी। माँ बाप ने समझा कि रोकना बेकार है। उनकी बेटी का इरादा पत्थर की तरह मजबूत था। उन्होंने आंखों में आंसू लिए इसे जाने की इजाजत दे दी। शहजादी अकेली ही महल से निकल गई। उसने किसी को साथ आने की इजाजत ना दी। चलते चलते वो शहर से बाहर निकली और एक बड़े घने जंगल तक पहुंची। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर उसकी मुलाकात एक अल्लाह वाले बूढ़े दरवेश से हुई। इनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नूर की चमक। उन्होंने शहजादी को उदास, थकी हुई और रोती देखा तो रहम आ गया। दरवेश ने नर्म आवाज में कहा,
बेटी, जंगलों की राहें अकेले चलने वालों के लिए आसान नहीं होती। मैं चाहूं तो आज की रात तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। शहजादी ने उनके नेक इरादे की कदर की और उनके साथ चलने की हामी भर दी। थोड़ा सफर तय करने के बाद शहजादी की टांगें जवाब दे गईं। वो एक दरख्त के नीचे हरी नम घास पर बैठ गई। दरवेश भी इसके पास बैठ गया ताकि किसी जंगली जानवर से इसकी हिफाजत कर सके। कुछ ही देर में शहजादी थक कर गहरी नींद में चली गई। सुबह जब वो जागी तो उसने देखा कि दरख्तों पर बैठे रंग बरंगे परिंदे इतनी मीठी आवाज में गा रहे थे जैसे इसने जिंदगी में कभी ना सुनी थी। दरवेश ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, क्या तुम जानती हो ये परिंदे क्या कह रहे हैं? शहजादी ने कहा, नहीं, मैं उनकी जबान तो नहीं समझती मगर उनकी आवाज दिल को सुकून देती है। अल्लाह वाले बुजुर्ग परिंदों की जबान समझते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कराकर शहजादी की तरफ मुड़े और नर्म आवाज में समझाने लगे कि ये परिंदे अपने मीठे तरानों में क्या राज बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये परिंदे एक ऐसे शहजादे की कहानी सुना रहे हैं जिसे एक जादूगरनी ने जादू से सांप की सूरत में कैद कर दिया था। वो मजबूर होकर सांप बनकर जी रहा था जब तक कि एक गरीब किसान की बीवी को इस पर तरस न आ गया। उसने इसे ऐसे पाला जैसे अपना बच्चा। वो पूरे 10 साल उनके घर में रहा। 10 साल गुजरते गुजरते वो बड़ा हुआ और एक शहजादी से मोहब्बत कर बैठा। वो इसी से शादी करना चाहता था। शहजादी के वालिद ने भी मान लिया क्योंकि इस सांप ने ऐसे हैरत अंगेज कारनामे किए थे कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता था। शहजादी ने भी हामी भर दी ताकि कोई ये न कहे कि उसके वालिद ने अपना वादा तोड़ दिया। फिर जादू का असर टूट गया और वो अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गया। मगर इसी वक्त सुल्ताना ने इसकी पुरानी सांप वाली खाल आग में झोंक दी, ये सोच कर के इससे इसकी बेटी हमेशा महफूज रहेगी। ये सुनाते सुनाते बुजुर्ग चुप हो गए। शहजादी की आंखें भर आईं क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि परिंदे इसकी अपनी मोहब्बत की दास्तान गा रहे थे। इसके शहजादे की जिसका हाल अब ना मालूम था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेहरबानी करके मुझे पूरी बात बताएं। मेरे शहजादे का क्या हुआ? जादू खत्म हुआ या कोई और आफत आ गई? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा शहजादा एक सफेद परिंदा बन चुका है, कबूतर जैसा। बेचारा बहुत मुसीबत में है। वो जख्मी भी है और उसकी जान को बड़ा खतरा है। शहजादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खतरे में क्यों है? बुजुर्ग ने भारी आवाज में बताया, इसकी खाल जलने की सजा यही थी कि वो परिंदा बनकर कमरे से भागे। उसने खिड़की से टकरा कर शीशा तोड़ा। इसके पर और बाजुओं पर गहरी चोटें आईं। अगर उन जख्मों का इलाज न हुआ तो शायद वो बच न पाए। शहजादी का दिल रो पड़ा। क्या कोई इलाज नहीं, कोई तदबीर, कुछ भी जिससे मैं इसे ठीक कर सकूं? बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया, इलाज है मगर आसान नहीं। दरख्त पर बैठे ये 4 परिंदे, इनमें से हर एक की दम का बस एक पर चाहिए। उन्हीं परों में वो बरकत है, वो दवा है जिससे तुम्हारा शहजादा फिर से ठीक हो सकता है, अगर अल्लाह ने चाहा। शहजादी ने हाथ जोड़ दिए। मैं ही उसकी मंगेतर शहजादी हूं। मैं इसे बचाने आई हूं। प्लीज उन परों को ला दें। मैं इसके जख्मों पर रखूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। बुजुर्ग ने रहम भरी निगाहों से उसे देखा। मैं कोशिश करूंगा मगर सब्र चाहिए। ये परिंदे दिन में बहुत चूकना रहते हैं। अगर अभी पास गए तो सब उड़ जाएंगे। हमें रात होने तक इंतजार करना होगा। अंधेरा छा जाएगा तो मैं चुपचाप दरख्त पर चढ़कर हर परिंदे की दम से एक पर ले आऊंगा। शहजादी ने सर हिलाया। दोनों ने पूरा दिन दरख्त की छांव में गुजार दिया। दिल में बेचैनी, आंखों में उम्मीद। आखिरकार सूरज ढल गया और रात उतर आई। परिंदे अपने घोंसलों में लौटने लगे। चारों परिंदे दरख्त की ऊपरी डालियों पर जाकर सो गए। शहजादी और वो अल्लाह वाला बुजुर्ग नीचे खड़े थे, इन परिंदों को सोने का इंतजार करते हुए।
जब अल्लाह वाले बुजुर्ग को पूरा यकीन हो गया कि चारों परिंदे गहरी नींद में हैं, तो वो बिल्कुल खामोशी से दरख्त पर चढ़ गए। एक एक करके उन्होंने हर परिंदे की दम से आहिस्ता आहिस्ता एक पर ले लिया, इतनी नरमी से कि परिंदे को एहसास तक ना हुआ। फिर वो नीचे उतरे और चारों पर बड़ी एहतियात से शहजादी के हाथ में रख दिए। शहजादी की आंखें शुक्रगुजारी से भर उठीं। वो बोली, ए दानिशमंद अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं आपकी इस नेकी का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकती। अल्लाह ही आपको इसका अजर दे सकता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, एक ऐसे बीमार इंसान का फर्ज जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। फर्ज का बदला नहीं मांगा जाता। फिर उन्होंने शहजादी को इस महल का रास्ता बताया जहां जख्मी शहजादा अपने असली माँ बाप सुल्तान के साथ पड़ा था। शहजादी ने फौरन रवाना होकर तेजी से दौड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वो इस बड़े महल तक पहुंच गई। वहां उसने सुल्तान को पैगाम भेजा कि वो शहजादे के जख्मों का इलाज करने आई है। सुल्तान ने पहले तो यकीन न किया क्योंकि उनके बेटे की हालत बहुत खराब थी, मगर शहजादी उनके सामने घुटनों के बिल बैठ गई और बोली, हुजूर, मुझे बस कोशिश करने दीजिए। अगर फायदा हुआ तो आपकी अमानत बच जाएगी, और अगर नहीं तो इससे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। सुल्तान का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, जो जानती हो कोशिश कर लो। वो मौत के दरवाजे पर खड़ा है, ये इसके आखिरी लम्हे हैं। शहजादी सुल्तान और कुछ दरबारियों के साथ इस कमरे में पहुंची जहां शहजादा जख्मी हालत में पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेता, अपनी मां की गोद में कराहता हुआ। शहजादी ने कांपते हाथों से वो 4 जादुई पर निकाले और एक एक करके इसके जख्मों पर रख दिए, और फिर जैसे मौजिज़ा शुरू हो गया। शहजादा फौरन इंसानी रूप में आ गया और उसके चेहरे की पीली पड़ी रौनक लौटने लगी। इसकी सांसें मजबूत होने लगीं, जख्म भरने लगे, यहां तक कि कुछ ही लम्हों बाद वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, जैसे कोई तकलीफ कभी हुई ही ना हो। जादू का आखिरी असर भी इसी लम्हे टूट गया। सुल्तान और सुल्ताना की